Yes, Shwetang, please start the quiz. Good morning, everyone. This is Jigyasa Quiz Club weekly quiz, and I am the quiz master of this quiz, and I am the only official of this quiz now. Description of the quiz: the topic is sobriquets and airports. Number of question is 15, and total marks you can obtain is 20. Rules are very simple. There are 15 questions in this quiz. Submit your answer on the provided link. Raise hands before asking the queries. Use of any means of cheating is prohibited. Decision of quiz officials is final. Star mark question have weightage of 2 marks. First question. The airport was named in honor of Moss L. Love, a US Army pilot who became one of the first military aviators to die in a plane crash way back in 1913. Name the airport. Is question visible? Shwetang, yes, Shwetang, you can continue. Shall we move on? Yes, please. Second question. The airport in Turkey is named after a fictional DC character despite that it has nothing to do with it. It is known as the funniest airport to be named. Name the airport. Shall we move on? Yes, please move. Third question. Land is a scarce resource in Japan, so engineers headed roughly 3 miles offshore into a bay to build this colossal structure. Work on this man-made island started in 1887, and by 1994 jumbo jets were touching down. Name the structure. क्विज एयरपोर्ट से रिलेटेड है तो ऑब्वियस स्ट्रक्चर एयरपोर्ट ही होगा कोई, तो इजी हो जाएगा ये. Shall we move on? Can you give some hints, Shwetang? मैनमेड आइलैंड है ये एक, मतलब लोगों को लगा था कि इसमें मतलब कोई भी स्ट्रक्चर क्या एक हाउस भी नहीं बन सकता, लेकिन ये पूरा का प्योर एयरपोर्ट ही बन गया है. Okay, okay. Move on. Landing on a Caribbean island forces pilot to fly over a small strip of beach, clear a decent sized fence, and pass over a road just before hitting the runway. Name the airport. ये एक एयरपोर्ट है जिस पे लैंड करने के लिए प्लेन्स को एक बीच से एकदम थोड़ी दूरी के ऊपर से फ्लाई करना पड़ता है, और ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है इस वजह से. Shall we move on? Yes, you can. But What भैया? yes, Shwetang, can you give some hints, because this is a bit vague question. हिंट है कि कैरेबियन आइलैंड मतलब थोड़ा यूएस साइड, नॉर्थ अमेरिका साइड, कुछ ऐसा देखिए. Okay, okay. Okay, you can move now, I think. स्टार मार्क क्वेश्चन है. A writer Leslie Stephen called it so in his book, and the country offers various adventures activity that proves it. ये एक sobriquet के बारे में बता रहा है किसी कंट्री का. Name the country which is mentioned in the question and its sobriquet. हिंट ये है कि एशियन कंट्री है, तो
एशिया यूरोप में से ही है कोई? Shall we move on? कंट्री और उसका सॉब्रिक्विट भी बताना है जो मेंशन किया गया है इस स्टेटमेंट में। Yes, you can move now, I think. Easy one, sixth question. The short form for its citizen is pronounced for fun with a hissing sound at the end. It sounds as the word being pronounced has the spelling OZ. Hence, this country in informal language is referred to as OZ. Name the country. ये क्रिकेट विकेट जो देखते होंगे तो उनको पता ही चल गया होगा ओजेड। और एक मूवी भी निकली थी द विजार्ड ऑफ ओजेड, एक फैंटेसी मूवी है। तो कंट्री को बताना है। आई थिंक ये हो गया होगा। Yes, yes. स्टार मार्क क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन। X is a heavily fortified British air and naval base that guards a strait which is only entrance to Y from Atlantic Ocean. Identify X and Y. X एक कंट्री है और Y एक सी ओशन कुछ भी हो सकता है जिसके नाम पे ही उसका सॉब्रिक्विट पड़ा है। विष्णु भैया ये तो हो ही गया होगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। Eighth question. In the late 16th century, Englishman Sir Jerome Horsey, who was known for his close contacts with Russian royal court during 17th century, the Russian Tsars used a term to describe the lands added from the Grand Duchy of Ludhiana. Name the country. एक टर्म यूज किया गया था जो आगे चल के उस कंट्री का सॉब्रिक्विट भी बन गया। हिंट के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। ये हिंट है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक वाइट कलर का दिख रहा है आपको और एक रशियन फ्लैग है, तो बहुत बड़ा हिंट मिल चुका है। क्वेश्चन मींस उसका सॉब्रिक्विट बताना है ये ना। बहुत आसान हो गया यार, ये बहुत बड़ा तो हिंट दे दिया। कंट्री बताना है, कंट्री। ये बहुत मतलब और आसानी हो उसका गया दूसरा हिंट की नाम वजह भी, से। दूसरा नाम भी। नहीं, वो जरूरी नहीं है, कंट्री बता सकते। शैल वी मूव ऑन? विष्णु भैया। Yes, yes. Ninth question, star mark question. The food was typically transported to soldiers in barrels with an abbreviation on it to signify the country X. However, soldiers soon come up with a mythical Y from those initials and began to thanking him for the food deliveries. Soon it became the popular nickname of this country. एक कंट्री के सोल्जर्स को वॉर के दौरान बैरल्स में खाना दिया जाता था, उस पर एक एब्रिविएशन लिख के सिग्निफाई किया जाता था उस कंट्री को, और फिर तुरंत सोल्जर्स ने एक कैरेक्टर को डेवलप कर दिया ऐसे ही बातचीत में, और आगे जाके वो निकनेम बन गया उस कंट्री का। तो बताना है आपको कंट्री और एक्स वाई दोनों बताना है। एक्स कंट्री है और वाई वो मैथिकल कैरेक्टर है। कोई हिंट दो, मतलब ये तो अब वॉर्स है तो किस तरह कोई का सुपर वॉर? ही पावर।
जो मिथिकल वाई है ये क्या नोन नोन है या फिर अननोन चीज है? ऐसे ही एक कैरेक्टर है, मतलब बातचीत में उस इनिशियल से एक नाम बना दिया गया, फिर आगे जाके वो कंट्री का निकनेम भी हो गया। जो एब्रिविएशन था उसके इनिशियल से वो नाम बना दिया गया। Shall we proceed? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्धांत कंट्री, आगे आगे बढ़ो। बढ़ो। कंट्री क्या नोन है कंट्री? हाँ, कंट्री तो नोन ही है, वेरी वेरी वेल नोन। मैंने शायद बोल भी दिया वो, मतलब एक हिंट में। आगे बढ़े। हाँ अच्छा ठीक है। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है ये भी। वो इट 9th वाज क्वेश्चन था, नेम्ड। क्वेश्चन था ना। हाँ हाँ, ये नाइन्थ, ये अभी 10th क्वेश्चन है। स्टार मार्क क्वेश्चन है, इट वाज नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स फेमस नेचुरल ब्यूटी एंड फॉर हैविंग इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एज इट्स मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। दिस बिकम मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ द जॉर्ज रिजुलिन इन हिज लास्ट पोएम मी अल्टिमो अदियोस। ये एक सॉब्रिक्विट के बारे में अगेन बात किया जा रहा है। कैसे उसका नाम पड़ा, और आपको कंट्री भी बताना है, किस कंट्री के सॉब्रिक्विट के बारे में नाम बात किया जा रहा है। Shall we proceed? गिव सम हिंट्स वेदांग। हिंट्स में तो आ, ये जॉर्ज रिजुलिन है, तो कोई भी अपने किसी मदरलैंड, अब समझ अरे ही गए होंगे आप लोग। बहुत बड़ा हिंट दे दिया तुम। ओके ओके, 11th क्वेश्चन बहुत बड़ा है। द इनिशियल प्लान वाज फॉर द एयर इंडिया फ्लाइट 301 बॉम्ब टू एक्सप्लोड एट द सेम टाइम एज द वन दैट हैड बीन प्लांटेड अबाउट एयर इंडिया फ्लाइट 182. However, flight 182's bomb exploded over the Atlantic Ocean of the southwest tip of Ireland just 1 hour after explosion due to the fact that the plan had failed to take into account that Japan didn't observe daylight sharing time. ये एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत डेडली इंसिडेंट बोल सकते हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा एयरपोर्ट मेनली इन्वॉल्व था। हिंट ये है कि इसमें एक खालसा कैनेडियन सिख टेररिस्ट अरेस्ट हुआ था, बहुत बदनामी भी हुई थी, ये बहुत बड़ा तो हिंट दे दिया। उससे शायद इजी हो गया। ये वही वाला ये ऑपरेशन वो आई वाला था थिंक क्या? ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं है, बहुत बड़ा ट्रेजेडी से बच गया था। जो एयरपोर्ट है वो एक्सप्लोड ही होने वाला था, लेकिन प्लेन ही एक्सप्लोड हो गया तो बच गया। मेनली प्लांटेड था एयरपोर्ट में। आई थिंक अभी तक आंसर लिख ही दिया होगा सबने, तो आगे बढ़ते हैं, सबका फुल ही आएगा। ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, आपको बताना है तीनों के इन तीनों पिक्चर्स के बीच में कॉमन क्या है। अगर ये तो बचपन नेट अगर जियो। अच्छे से गुजारा होगा तो ये देखा ही होगा पक्का। इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी। मींस कॉमन, ये कोई टीवी शो है? पिक्चर्स विजिबल है। हाँ, मींस टीवी से रिलेटेड है क्या? कोई टीवी का चैनल का नाम है शो वैसे? कुछ भी ये कॉमन नहीं, किस इन एंगल में तीनों तुम के बीच कॉमन में। पूछ रहे हो? मतलब कि ये तीनों ऑब्वियसली कोई शो है, और एक और ऐसा शो ब्रॉडकास्टिंग था। कॉमन। नहीं, एक हाँ एक और ऐसा ही शो था क्या, वो उसका आंसर हाँ है? हाँ 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 वही आंसर है? हाँ हाँ हाँ। अब कॉमन में तो सारे शोज, अब जैसे सीरियल्स वाले सारे शोज स्टार प्लस पे, तो
बस बता ही दिया मैंने शायद। फिर 13th क्वेश्चन, इन तीनों को कनेक्ट करके एक फेमस इंसिडेंट बताना है। बहुत ही फेमस इंसिडेंट है ये तीनों पिक्चर्स। एक में आप एक लीडर को देख सकते हैं, एक कंट्री का फ्लैग है दूसरे में, और एक महिला पुलिस के साथ है तीसरे में। बहुत ही फेमस इंसिडेंट है। Shall we proceed? 1 minute. Which type of incident? Any hint you can give so that? Unfortunate incident for North Korea. बहुत बड़ा हिंट है, फुल ही आ जाएगा सबको लगता है। स्टार मार्क क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। Shwetang, in the last uh, question, is it related to the assassination of some person? I don't know भैया। 14th क्वेश्चन स्टार मार्क क्वेश्चन। स्टेट ऑफिशियल told INS, एक न्यूज एजेंसी है, that they have raised the issue with the airport authority of India a number of times to explore the possibility of expansion of the airstrip of this airport some 22 kilometer from here to facilitate safe landing the aircraft। ये साइड में उस एयर स्ट्रिप का इमेज है। इसका इशू ये था कि इसका बहुत ही छोटा, मतलब जो भी लेंथ है वो बहुत छोटा है और सेफ लैंडिंग हो नहीं पाती है, और ये बहुत ही स्ट्रेंज एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो मतलब इंडिया में ही एयरपोर्ट है, तो आपको एयरपोर्ट का नाम बताना है। और ये कहाँ पे वो भी बताना है, मैं लिखना भूल गया, ये कहाँ पे वो भी बताना है। स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये क्या किसी रिसेंट कोई चीज से रिलेटेड है ये एयरपोर्ट? नहीं, बहुत पुराना ही है। अच्छा। बस बहुत स्ट्रेंज है, आप पिक्चर देख के अंदाजा लगा सकते हैं। रिस्की लग रहा है बहुत। आई थिंक हो गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, कनेक्ट दिस विथ एन अनफॉर्चुनेट यूनिकनेस। ये सारे कंट्रीज के नाम हैं, आपको कनेक्ट करना है। हिंट ये है कि थोड़ा थीम से रिलेटेड सोचिएगा, और इन लोग में कॉमन है जो उससे रिलेटेड, आपको ये अनफॉर्चुनेट यूनिकनेस बताना है। इज इट डन? फॉर्म में आप लिख सकते हैं, अभी भी टाइम है। कोई क्वेश्चन किसी को रिविजिट करना है तो बोल सकते हैं अभी। Question number 8. 7 दिखा दो।